Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, you will learn the site of photosynthesis. Now your heading will be site of photosynthesis. Site of let us draw the write the heading site of photosynthesis. As you all know, site means the place. Site means all about the place where something happened. So here I am going to talk about the site where photosynthesis happened. You are well familiar with the word leaf. The leaf is the green part of plants. Suppose that this is the leaf. When you make the thin TS of leaf, when you make the thin TS of the leaf, then you will find the very special structure among the leaf, that is the middle part of leaf, that is known as the mesophyll of the leaf. Mesophyll of the leaf, and this central part is known as vascular bundle. So the mesophyll of leaf is characterized by having the very special kinds of plastids, that is known as the chloroplast. So chloroplast are the characteristics of the mesophyll cell. It is sometimes known as the palisade cell. Palisade cell. So the main site of photosynthesis is the palisade cells having plastids. So when you zoom the each and every cells that is from the palisade cells, there is the green dot like structure, that is called chlorophyll, and that is available in the pouch like structure or the packets of the structure, that is known as the plastids. So the plastids are the main sites of photosynthesis. Now let us draw the structure of chloroplast. When you draw the structure of chloroplast, you will find this is the structure of chloroplast. You will find the double membranous layer, and inside the double membranous layer, very special structure found, that is known as granum. This is the granum, and each granum is connected with itself through the stroma lamellae. This is the stroma lamellae. So let us label the diagram. This is the outer membrane of chloroplast. Outer membrane of chloroplast. Outer membrane of chloroplast. This is the inner membrane of chloroplast, and this is the granum. Granum, the plural grana, and this is the stroma. Stroma, and this one is the stroma lamellae. Stroma lamellae. One more thing you must have to know about the granum. This is the granum. Granum covered by the very special kinds of structure, that is known as thylakoid membrane. Listen, this one is the thylakoid membrane, and each layer you can see is known as thylakoid. You must have to write in your copy about the structure of chloroplast. This is the stroma, sometimes known as the fluid stroma, and this is the magnifying part of granum, that is the singular granum and plural grana. Now back to what happened in granum and what happened in stroma. First of all, you need to write what happened in granum. In granum,
Granum is responsible for the light reaction. It is responsible for the light reaction. Light reaction means reaction that required light. It also perform the splitting of water. Splitting of वाटर मॉलिक्यूल ग्रैनम में स्प्लिट्स होते हैं. और क्या होता है, और होता है लाइट रिएक्शन है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. लिख लो कॉपी में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये कहाँ होता है, ये सब होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में. ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब कहाँ होता है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में. वाटर स्प्लिट्स कहाँ होते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में. ठीक है. O2 रिलीज्ड ये क्या होता है, ये भी होता है फ्रॉम थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन. ये भी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन से होता है. ठीक है, ऑक्सीजन भी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन से ही रिलीज आउट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ phosphorus compound like ATP and NADPH, निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज. इतना बेसिक काम कहाँ होता है, ग्रैनम में. क्या क्या होता है यहाँ पे लिख लो कॉपी में. लाइट रिएक्शन बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड ATP NADPH. ठीक है, ये सिंथेसाइज तो होता है थैलेक्वाइड ग्रैनम में होता है, बट ये कहाँ चले जाते हैं, फाइनली मूव टू स्ट्रोमा में मूव करके चले जाते हैं. अब आते हैं हम लोग स्ट्रोमा में क्या होता है. ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इन स्ट्रोमा. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है इन स्ट्रोमा. अब चेक करते हैं स्ट्रोमा में क्या होता है. लिसन, स्ट्रोमा में बेसिकली होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, डार्क रिएक्शन. एक्चुअली डार्क रिएक्शन डजंट मीन इट हैपन इन नाइट. लिसन, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज द डार्क रिएक्शन हैपन इन नाइट. इट डजंट मीन एट नाइट. ये आप लिख लीजिए कॉपी में. इसका ये मतलब नहीं होता है कि नाइट में होता है, ये दिन में भी हो सकता है. बेसिक वर्क इसके क्या है ये जानना जरूरी है. ठीक है ना, इसके बेसिक जो वर्क है वो जानना जरूरी है. बेसिक वर्क लिख लो कॉपी में. पॉइंट वन क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2. रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होता है. थर्ड क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH. जो NADPH और ATP बना था कब, लाइट रिएक्शन में. वो यूटिलाइज कब होता है, वो यूटिलाइज होता है डार्क रिएक्शन में. ठीक है, और डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है. इट डजंट मीन द नाइट. इसका मतलब डार्क रिएक्शन क्यों बोला गया है, फॉर दिस रिएक्शन देयर इज नो नीड ऑफ लाइट. और ये होता कहाँ है, स्ट्रोमा में. ये सब दिमाग में रखो. रिडक्शन ऑफ CO2, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH. दिस शुड बी मेंशन इन योर कॉपी वन बाय वन. नाउ बैक टू the next important point is the photosynthetic pigment. Photosynthetic pigments. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, ऑल द बायोकेमिकल, लिख लो कॉपी में, ऑल द बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रिक्वायर्ड टू absorb light
that required to absorption of light of different wavelength and also help to transfer the एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो लाइट को एब्जॉर्ब करता हो, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता हो और एनर्जी को ट्रांसफ़र करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को जानना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो आपको लिखना है कॉपी में एक एक करके। लिख लो पहले क्लोरोफिल ए, सेकेंड क्लोरोफिल बी, थर्ड ज़ैंथोफिल, फोर्थ कैरोटीनॉइड। अब ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, देखो हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स में यही दोनों पिगमेंट्स जो है मेन होते हैं। बाकी तुम जानते हो लोअर प्लांट्स में सी और डी भी होता है, लेकिन वो हम लोअर प्लांट्स में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस, लेसन का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ये मेन पिगमेंट्स है, बाकी ये दोनों क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स है। फिजिकल क्लास में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स के बारे में हम डिटेल बता देंगे। ठीक है ना? थैंक यू।